میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے۔ انہیں کس طرح کہیں ہم کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، انہیں کس طرح کہیں ہم کہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ یہ کلام پاک کیا ہے، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ کلام پاک کیا ہے، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو تمام کائنات کا علم دے دیا، نبی نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، اگر کی ہوتی تو جب نبی 40 سال میں اعلان نبوت کرتے، ویسے تو میرے آقا پہلے سے نبی ہے نا، لیکن اعلان نبوت 40 سال میں کیا، تو جب سرکار کھڑے ہوتے ہیں اعلان نبوت کے لیے تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ معلوم ہے میں نے سے پڑھایا ہے، تو خدا کی محبت دیکھیے، اپنے نبی کی محبت دیکھیے، اللہ کو اپنے حبیب سے پیار کتنا ہے، محبت کتنا ہے کہ گوارا نہ کیا کہ جب میرا نبی کھڑا ہو، میرا محبوب کھڑا ہو تو کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو دوسرا کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھا دیا۔ اب قرآن کیا ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، کوئی ایسی چیز قرآن میں نہیں ہے جس میں جس کے اندر دنیا کا علم موجود نہ ہو۔ گویا کہ اللہ کو اپنے حبیب سے محبت کتنی ہے نا، محبت کتنی ہے۔ شاعر نے کہا تھا زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، سب کچھ تو آقا آپ کے لیے ہے۔ اگر ہمیں یہ سانسیں ملی ہیں تو محمد کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں یہ سانسیں ملی ہیں تو نبی کائنات کے صدقے میں، اگر ہمارے جسم میں جان ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں۔ ارے اگر اللہ کو اپنے حبیب کو پیدا کرنا نہ مقصود ہوتا تو نہ دنیا بنتی نہ آخرت بنتی۔ مصطفیٰ آئے تو دنیا میں باہر آئی ہے، ہم مصطفیٰ کو بھول جائیں؟ انہی کی عظمتوں کا ذکر کر کر کے لوگ ولی بن گئے، انہی کا ذکر کر کے، وہ نبی جن کا ذکر نبیوں نے کیا۔ ہر نبی آ کر مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ آدم نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، نوح نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، داؤد نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، ابراہیم نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، یوسف نے مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے بڑے بڑے لوگ اپنے وقت کے امام بن گئے، کوئی امام اعظم بنے، کوئی امام محمد بنے، کوئی امام یوسف بنے۔ ہر قسم کے لوگوں نے، ہر انسان نے اگر مرتبہ پایا ہے، ہر مسلمان نے اگر عروج پایا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں پایا ہے۔ ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے اور با اختیار ہے، اور ہم اپنے نبی سے جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر تو برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی پر یہی مصطفیٰ کی، یہی غلام کی شان ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بتا میں یہ رہا تھا، نبی سے محبت کرتے ہی لوگ جنہوں نے نبی کی محبت کو پا لیا وہ اپنے وقت کے امام بن گئے، ولی بن گئے، بادشاہ بھی رہے، تب بھی اللہ نے ان کو ایسا مقبول کیا کہ مرنے کے بعد بھی بہت سارے بادشاہ ایسے آئے کہ ان کا نام مٹ گیا، لیکن نبی سے محبت کرنے والوں کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور آگے بھی زندہ رہے گا۔ محمود غزنوی سنا ہے نام آپ نے بادشاہ کا؟ اب لوگ ان کو چاہے جو کہیں، ہم تو اللہ کا ولی کہتے ہیں اور ہماری زبان کوئی روک نہیں سکتا، ہے نا۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے۔ جو اللہ سے کے ولی سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے۔ آج کل باندھا میں بھی بڑا چوری کا معاملہ گردش کر رہا ہے نا، کہ ہمارے مبین بھائی اکثر بتاتے رہتے ہیں اتنے فلانی جگہ ہے، اتنے فلانی جگہ ہے، ٹھیک ہے 10-15 اگر ہیں تو ہمارے لوگوں نے اسے 100-200 بتا دی ہے نا، بلا وجہ رات پہ جگ رہے ہیں، اور وہ کہیں دکھتے نہیں، کہیں پہاڑ میں چڑھے رہتے ہیں۔ بتائیے ان کو کوئی گھر نہیں مل رہا، پہاڑ میں چڑھے ہیں، تو اس کا مطلب یا تو وہ مضبوط ہے یا پرشاسن مضبوط ہے۔ اب سمجھ میں آ جائے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمود غزنوی بادشاہ ہیں، میں آپ کو ماحول بنا رہا ہوں۔ ان کے زمانے میں چوریاں بڑی ہونے لگی، بڑی چوریاں ہونے لگی۔ جس گھر میں چوری ہوتی تھی 4 لوگوں کے قدموں کے نشان ملتے۔ کتنے ہیں؟ 4 لوگوں کے قدموں کے نشان ملتے۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ 4 چور ہیں جو بڑے ایکٹیو ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، تابڑتوڑ چوریاں ہو رہی ہیں۔ پولیس لگائی گئی، سپاہی لگائے گئے، لیکن چور ہٹتے
न चढ़े जैसे आपको नहीं मिल रहा है, सो मैं लेकिन हाथ पे नहीं आ पा रहे साहब। तो बड़ी चोरियां होने लगी। जब बहुत हो गया, कई इलाके में चोरियां हो गई, तो बादशाह ने जब देखा कि सिपाही कुछ नहीं कर पा रहे, तो बादशाह ने कहा ऐसा है, अब तुम कुछ ना करोगे, हम जो कुछ करेंगे अब हम करेंगे, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम पकड़ेंगे चोर को। लोगों ने कहा हुजूर आप कैसे पकड़ेंगे? कहा वो मेरा काम है। बादशाह ने भेद बदला। रात का वक्त था, सन्नाटा था, आज की तरह रोशनी तो होती नहीं थी हर जगह कि बढ़िया बढ़िया लाइटें जल रही हो। अगर यहाँ हिंदुस्तान में भी देखा जाए, आज से 40 साल पहले तो हालत यही होती थी, रात का अंधेरा होता था, चिराग जला करते थे, है कि नहीं? तो बादशाह ने लिबास बदला, रात का अंधेरा है, पुराने कपड़े पहने, फटी पुरानी चादर डाली, निकल गया। निकला, देखा तो एक चौराहे में 4 खड़े हुए, 4 खड़े हुए हैं। बादशाह समझ गया यही है, कोई और नहीं है। अच्छा, उसने देखा, उन चारों ने देखा कि कोई आ रहा है तो भागने लगे। तो बादशाह ने कहा भागो नहीं, इन्नमा अना बशरुम, मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। क्या कहा? मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। जब उसने कहा, बादशाह ने, महमूद गजनवी ने, मैं तुम्हारे जैसा हूं, तो चोर रुक गए। सोचने लगे, बादशाह कह रहा इन्नमा अना बशरुम, मैं तुम्हारे जैसा हूं, इसका मतलब हम चोर है तो ये भी चोर होगा। रुक गए। बादशाह ने कहा बैठो यार, कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। बादशाह ने कहा, उन्होंने मान लिया, जैसे नबी ने कहा था उम्मतियों में कुछ जाहिल थे, उन्होंने मान लिया, लेकिन यह ना देखा कि नबी की अजमत क्या है। अल्लाह के रसूल ने कहा तो जरूर, लेकिन मुस्तफा की शान यह है कि उंगली का इशारा करे तो मकामे साहिबा में डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। एक पहलू देखा, दूसरा पहलू ना देखा उन्होंने, वो भी चोर समझे हमारे जैसे हैं ये। लिबासे आदमी पहना, जहाने आदमी समझा। लिबासे आदमी पहना, जहाने आदमी समझा। मुजम्मिल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। मुजम्मिल बन के आए थे, तजल्ला, बोलो तजल्ला। मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। चारों रुक गए भाई। बादशाह ने कहा ये बताओ कहां कहां चोरियां करी? कहा भाई बहुत चोरियां करी, बहुत। कुछ फायदा हुआ? होता है, चंद दिनों का फायदा होता है, खा पी के खत्म कर देते हैं, कोई बड़ा हाथ अभी नहीं मार पाए। बादशाह ने कहा ये बताओ तुम चोर हो, कोई क्वालिटी भी रखते हो कि नहीं, सिर्फ चोरियां करते हो? कहां क्वालिटी है? हम चारों के अंदर एक एक सिफत है, एक एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? एक ने कहा मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि अगर जानवर बोलेगा तो मैं बता दूंगा ये क्या कह रहा है बड़ी क्वालिटी। कुत्ता अगर बोले तो हम तो इतना ही समझते हैं भाव भाव कर रहा है, क्या जाने, है ना? लेकिन उसने कहा अगर जानवर बोलता है तो मैं बता दूंगा कि ये कह क्या रहा है। कहा बहुत अच्छा, तुम्हारे पास क्या क्वालिटी? दूसरे से पूछा। उसने कहा मेरे पास ये क्वालिटी है, दीवार चाहे जितनी ऊंची हो, साधन कुछ ना हो, जाने का रास्ता कुछ ना हो, कितनी ही ऊंची हो मैं चल जाता हूँ। ये भी बड़ी क्वालिटी है ना। आज जेलों की दीवार लोग नहीं नाप पाते क्योंकि ऊंचाई ज्यादा होती है, लेकिन वो करे चाहे जितनी ऊंची हो, साधन कुछ ना हो, लेकिन मैं चल जाता हूँ। कहा ये भी क्वालिटी अच्छी है। तीसरे से पूछा तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है? उसने कहा मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे नाक में ये चीज है, ये तासीर है कि खजाना माल जिस कमरे में होगा मैं सूंघ के बता दूंगा। 10 कमरे होंगे तो मैं बता दूंगा इसमें है इसमें नहीं है। ये क्वालिटी है। बादशाह ने कहा सारी चोरों वाली क्वालिटी है। अब चौथे से पूछा तुम्हारे अंदर क्या सिफत है? उसने कहा मेरे अंदर ये सिफत है कि अगर तारीकी रात में किसी को मैं हिजाब में, पर्दे में देख लूं, अंधेरे में देखूं, चेहरा साफ न दिखाई दे, अगर जो वो पर्दे में हो, लेकिन जब सुबह देखूंगा तो मैं पहचान लूंगा रात में कौन था। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? रात के अंधेरे में अगर मैंने एक बार किसी को पहचान लिया, भले वो हिजाब में हो, लेकिन जब सुबह रोशनी में देखूंगा तो मैं पहचान लूंगा रात में यही था। बादशाह ने कहा ठीक है। अब चारों ने कहा ये बताओ, चारों की क्वालिटी तो तुमने पूछ ली, अब ये बताओ तुम्हारे अंदर ये कोई क्वालिटी है कि नहीं? बादशाह को चोर समझ रहे थे, अपनी से बातें बता दी। कहा ये बताओ तुम्हारे अंदर भी क्वालिटी है? महमूद गजनवी ने फरमाया कि हाँ मेरे अंदर भी क्वालिटी है। क्या क्वालिटी? कहा मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ये सिफत है कि अगर किसी बंदे को फांसी दी जा रही हो और मैं दाढ़ी हिला दूं, इशारा कर दूं, फांसी रुक जाती है। अगर इशारा कर दूं, दाढ़ी हिलाना है, फांसी, बस इतना कहना है, मेरी दाढ़ी हिलेगी और काम हो जाएगा। कहा बहुत अच्छा, चलो कभी इसका फायदा देखेंगे हम लोग। कहा भाई करना क्या है? कहा चोरी करना, और क्या करना है? कहा कहाँ का इरादा? कहना इरादा तो अभी नहीं बनाया है, ड्रोन का मामला नहीं है तो देखे कहाँ क्या रखा है। समझ रहे ना? फिर क्या किया जाए? बादशाह ने कहा सुनो, छोटी मोटी चोरी तो बहुत दिन से कर रहे हो, आज बड़ा हाथ मारो। कहाँ मारना है? कहीं और नहीं, बादशाह क्या मारो। महमूद गजनवी बादशाह हैं,
उस बादशाह कह रहा है महमूद गजनवी बादशाह है, कहीं और न जाओ, उनके महल में चलो, बड़ा हाथ लगेगा, कई दिनों तक दूसरी चोरी करने की जरूरत। चारों कहने लगे यार तुम तो बड़े दिलेर हो, पहले दिन आए हो बड़ा हाथ मारने, वो भी बादशाह के यहाँ, चलो यार तुम हिम्मत दिला रहे हो तो चलते हैं। चारों पहुंचे, रात का सन्नाटा है, जब रात में कोई निकलते तो कोई देखे ना देखे, कुत्ता सबसे पहले देख लेता। वो अपना काम शुरू करता, वो आया भाव बना, जैसे उसने भौंकना शुरू किया, उन्होंने कहा ये बताओ कह क्या रहा है ये? एक से पूछा तुम कहते हो जानवर जो बोलता है, मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। कहा ये क्या कह रहा है? कहने लगा ये कह रहा है कि तुम में से एक बादशाह है, तुम्हारे बीच में एक बादशाह है। तीनों ने कहा तुम पागल हो, तुम्हें मालूम नहीं, इन्नमा अना बशरुम, हम सब एक जैसे हैं, हमारे बादशाह कहाँ से आ गया? आज तुम्हें गलती लग गई है, तुम्हें तजुर्बा नहीं हो पाया कि कुत्ता क्या रहा है, चलो छोड़ो। अब दूसरे का नंबर आया, देखा महल है, बड़ी ऊंची दीवार है, जिसने कहा था कि इंतजाम कुछ भी ना हो मैं चढ़ जाता हूँ, चढ़ गया, उसके अंदर क्वालिटी थी ना, चढ़ गया। चढ़ने के बाद उसने जाकर उधर से रस्सा फेंका, ये तीनों और चढ़ गए, चारों और चढ़ गए। फिर उसका नंबर आया जिसने कहा मैं सूंघ के बता देता हूँ खजाना माल कहाँ धरा है। उसने कहा इस कमरे में है भाई, कहीं और नहीं है। सब घुसे, वहीं खजाना था, सारा इकट्ठा किया, फिर जहां से गए थे वहीं से वापस आए। अब पांचों लोग बैठे एक जगह खजाना बांटने के लिए। चोरों का ये काम होता ना कि भाई बराबर बराबर बांटा जाए ईमानदारी के साथ, चोरी भी ईमानदारी के साथ हुई तो खजाना भी बराबर तकसीम होगा। सब बैठ गए साहब। बादशाह ने कहा क्या गजब कर रहे हो? क्या खजाना बांट रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, छोटा मोटा हाथ नहीं मारा है, बादशाह के यहाँ चोरी करी है। सुबह पुलिस पूरे शहर में गश्त करेगी, अगर एक भी चीज यहाँ तारीकी में छूट गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। फिर करना क्या है? लोगों ने इसकी बात इसलिए मानी थी कि उसने बड़ा पता बताया था ना। करना यह है कि चारों एक काम करो, गड्ढा खोदो, सब मिलके गड्ढा खोदते हैं, अंदर माल दफन कर देते हैं, और सब हमको अपना पता बता दो, ताकि जब ये मामला ठंडा हो जाए तो हम यहाँ आकर माल तकसीम कर लें। सबको राय पसंद आ गई, बात तो सही है, बादशाह के हाथ मारा है तो पूरे शहर में गश्त होगी। गड्ढा खोदा, माल दफन कर दिया। दफन करने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। बादशाह ने सबसे एड्रेस पता ले लिया था, कौन कहाँ रहता है। उसने ये समझ के दे दिया था कि इन्नमा अना बशरुम, दे दिया है। अब सुबह बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया, कहा सुनो फला 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 पते में फला फला लोग रहते हैं, पकड़ कर लाओ, और फला इलाके में मट्टी के नीचे खजाना दबा है, निकाल कर लाओ। चारों को पकड़ कर लाया गया, खजाना लेकर आया गया। बादशाह ने एक बात कह दी, सुनो मुकदमा चलाना, और जब उनको फांसी की सजा सुना दी जाए, जब वो मुजरिम साबित हो जाए, तो फांसी पर चढ़ाने से पहले मेरे पास लाना, मेरे पास लाना। अल्लाह अकबर। चारों पकड़ लिए गए, खजाना बरामद हो गया। काजी साहब की बारगाह में मुकदमा पेश हुआ, चोरी साबित हो गई। जब लेकर आने के लिए कहा कि अब इनको दार पर चढ़ाना है, सूली पे चढ़ाना है, तो बादशाह का फरमान याद था कि मेरे सामने लाना है। जैसे चारों को लाया गया, चार परेशान थे कि हम चार तो हैं, पांचवा कहाँ गया? वो चारों पकड़ गए, पांचवा कहाँ गया? लेकिन जैसे चारों को लाया गया, वो जो कहता था कि तारीकी रात में मैं अगर पर्दे के पीछे किसी को देख लो तो सुबह के उजाले में पहचान लेता हूँ, उसने कदम पकड़ लिए, बादशाह अब तेरा काम है, दाढ़ी हिला दे। बादशाह इशारा कर दे, हमारा काम बन जाए। बादशाह ने इशारा किया, चारों को फांसी की सजा खत्म हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, बादशाह ने सजा भी खत्म करा दी और कहा सुनो आज के बाद से तुम चोरी नहीं करना है, बल्कि आ जाओ मेरे महल में, आ जाओ, तुम्हें नौकरी दी जाएगी, और तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हें नौकरी में जो उजरत है वो दी जाएगी। वो चारों ने नौकरी कबूल करी, खिदमत करी, वजीफा लेते थे। और फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने पीर मुर्शिद हजरत सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में लेकर गए और उनको बैअत कराया। ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके पीरो मुर्शिद हैं, हजरत महमूद गजनवी के आप अपने पीरो मुर्शिद उनके पास लेके गए, चारों को बैअत कराया। और सिर्फ ये अच्छे इंसान ना बने, अपने वक्त के चारों चोर वली बन गए, वली बन गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौलाना अबू नूर मोहम्मद फरमाते हैं, अल्लाह के वली हमारे दरमियान होते हैं, हमारे ही दरमियान होते हैं। ये अलग बात है, हम पहचान नहीं पाते। उनका ताल्लुक रब से होता है, उनका ताल्लुक मुस्तफा से होता है। ऐ मुसलमानों, अपना ताल्लुक नबी से पक्का करो, अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक जोड़े रखो। तुम गुनाहगार हो गए, सियाकार हो गए, बदकार हो गए, लेकिन जब मैदान महशर कायम होगा और अगर मुस्तफा का इश्क तुम्हारे दिल में होगा, मुस्तफा का इशारा होगा, तुम्हें फांसी से निजात मिल जाएगी।
नबी का इशारा होगा और जहन्नम से आजादी का परवाना मिल जाएगा। हमारा ईमान है, हम गुनाहगार जरूर हैं, ऐ आका हम गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन गुस्ताख नहीं है, गद्दार नहीं है। आपकी शान में अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। झूम कर बोलो, बर्दाश्त करोगे? नहीं करेंगे। जमीनो जमा, झूम कर कहो, जमीनो जमा बने दो जहां, हम आए यहाँ, तुम उठे भी वहां, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, दहन में दबा तुम्हारे लिए। आई लव मोहम्मद पर एतराज तो झूम कर सुभान अल्लाह। आई लव मोहम्मद पर एतराज करने वाले नादान हैं, वो जानते नहीं कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी पर एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक एफआईआर की बात करते हो, कानून की बात करते हो। हमारा संविधान 19 के अनुच्छेद 19 के तहत, 25 के तहत, 21 के तहत हर मुसलमान को और हर इंसान को अपने मजहब की आजादी देता है और अपने मजहब को फैलाने की आजादी देता है। अरे हमारा तो लीडर, हमारा तो प्रॉफिट तो वो है जो एक जमीन के लिए नहीं, एक खित्ते के लिए नहीं, यहाँ से लेके वहां तक तुम्हें तो मालिक हो। पीछे वाले भी अपनी जिम्मेदारी समझे। ऐ आका यहाँ से लेके वहां तक तुम्हें तो मालिक हो। ये कायनात बनी है मेरे नबी के लिए, ये कायनात बनी है मेरे नबी के लिए। एक एफआईआर की बात करते हो, नबी के 99 नाम है और आला हजरत ने तो बताया 1400 नाम, अल्लाह अकबर, लेकिन सिफाती नाम 99 है। एक नाम के लिए नहीं, 99 नाम पे क्या 99 फायदा जो होगी, अगर होगी तो मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे ना इंशाअल्लाह। हम इसका बाइकाट करते हैं। ऐसे गद्दारों का बाइकाट किया जाए जो हमारे मुल्क, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे भी अमन पसंद हमारे बिरादरान वतन है जो खोल कर कह रहे हैं नबी से मोहब्बत सब कुछ गवारा हो सकता है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी गवारा नहीं हो सकती। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। घूम कर कहो सुभान अल्लाह। तेरे नाम पे सबको वारा करूंगी मैं। और शायर फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है नबी, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अपना जीना है मरना सब कुछ नबी के लिए। दार पे चढ़ना गवारा हो जाएगा। तुम एफआईआर की बात करते हो, तुमने हमारी मसाजिदों को निशाना बनाया, हमने कुछ ना कहा। खानकाहों को निशाना बनाया, कुछ ना कहा। तुमने हमारे मदारिस को निशाना बनाया, हमारे घरों को निशाना बनाया, हमने कुछ ना कहा। लेकिन नबी की शान में जो अमन का पैगंबर है, जिसने कायनात को अमन का पैगाम दिया, जिसने उठती हुई गिरती हुई इंसानियत का हाथ पकड़कर बामे पर पहुंचाया, इंसानियत से बड़ा कोई चीज नहीं होता। हमारे नबी ने गिरे कुचले लोगों को उरूज दिया है। वो नबी जो कहता हो, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहता हो, तुम्हारे पड़ोस में जरूरी नहीं कि मुसलमान हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो परेशान है तो तुम्हें चाहिए कि उसकी मदद करे। वो नबी हम भूल जाएं जिसने अपनी नमाजों में, जिसने अपनी इबादत में हमको याद रखा। ऐ आका मुसलमान गुनाहगार जरूर है, गद्दार हरगिज़ नहीं है। आई लव मोहम्मद कहिए, दस के बोलो यार, डरते किस बात को। एक एफआईआर की बात करते हो, नबी की मोहब्बत में सैयद किफायत अली काफी ने कहा था दार पे चढ़ना गवारा है, लेकिन वतन से मोहब्बत के खिलाफ गवारा नहीं हो सकता। आई लव के बोलो यार, आई लव, आई लव, आई लव अहमद, आई लव, आई लव, आई लव। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वाखिर दुआना अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पूरे हिंदुस्तान में जिन लोगों ने हरकत करी है, हमारे उलमा इकराम ने अखबारों में दिया है कि इनके खिलाफ अइम्मा को चाहिए कि मस्जिदों से तकरीरें करें, ताकि ये समझें कि किसी छोटी मोटी जगह पर हाथ नहीं मारा है, बल्कि वहां पर उन्होंने अपना पंजा गाड़ा है जहां से ये बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हम कुछ नहीं चाहते।